Today we're going to take in this lecture the indifference curve theory, and myself is Dr. Gulnawaz Usmani, and I'm here as assistant professor in the Department of Economics of Pune College of Arts, Science and Commerce, and the video is based on the indifference curve theory. So we begin with the introduction part of the theory, that what is indifference curve and why we use the indifference curve and what is the significance of indifference curve theory in the economics. So for the introduction, it is a tool to measure utility, and I hope you all are very much familiar with the utility, that what is utility. Utility is a power of anything which satisfy our wants. किसी भी चीज की वो पावर जो हमारी wants को satisfy करे उसको हम utility बोलते हैं. And indifference curve is a tool through which we can measure the utility of any commodity. It is a concept of consumer behavior theory based on the ordinal approach. There are two approaches. In the class you have learned about this. These two approaches. One is the cardinal approach and other one is the ordinal approach. Cardinal approach was of the view that we can measure the utility in mathematical numbers or in the cardinal numbers like 1, 2 or 3. And this indifference curve theory is a concept of consumer behavior and based on the ordinal approach through which we can measure our utility in terms of ranks, orders or preferences. This theory was propounded by the J.R. Hicks and R.G.D. Allen in 1934. These are the two economists. One is J.R. Hicks and other one is the R.G.D. Allen. In 1934, they propounded this theory. They explained this theory. The ordinal approach, that according to the ordinal approach, the utility cannot be measured in any quantifiable number. Like 1, 2, 3, 4, these are the quantifiable number, and we cannot measure our utility in terms of these mathematical numbers. Rather, we can give ranks, orders or preferences to our utility. मतलब हम सिर्फ orders, rank दे सकते हैं कि मुझे ये चीज उस चीज से ज्यादा अच्छी लगती है. लेट्स सपोज कि टी एंड कॉफी, इफ आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ टू द टी, अगर मुझे टी बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं ये कहूंगा कि टी मुझे कॉफी से ज्यादा पसंद है. मैं ये नहीं कहूंगा कि टी मुझे 1 यूनिट ज्यादा पसंद है कॉफी से. मैं इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा. राइट. सो ऑर्डिनल अप्रोच इज वेरी नेचुरल लाइक थिंग कि हम अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो वी कैन गिव ओनली द रैंक्स, ऑर्डर्स और द प्रेफरेंसेस टू अवर चॉइसेस और अवर यूटिलिटीज. Ordinal utility measured only in ranks, orders or preferences, and thus ordinal utility means the consumer preferences or choice for one commodity or for a basket of goods over the other. क्योंकि हम ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक्स और ऑर्डर्स देते हैं अपनी चॉइसेस को और या फिर अपने गुड्स को किसी दूसरे गुड्स के ऊपर. दस हम इसीलिए बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो उसमें हम कमोडिटीज को दूसरी कमोडिटीज के ऊपर सिर्फ प्रीफर करते हैं, ना कि उनको हम नंबर्स देते हैं कि ये मुझे इतने नंबर ज्यादा पसंद है या इतने नंबर कम पसंद है. Moreover, consumer has limited income which they have to spend on their consumption. But to have a basket of good, we have very limited income. मतलब basket of goods लेने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड इनकम है जिसको हमें अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं उन सब के ऊपर स्पेंड करना होता है. Therefore, in this approach, a consumer will prefer a basket of good over the other, given the prices of the good and the income of the consumer. इसीलिए ये जो थियरी है यानी इंडिफरेंस कर्व थियरी हमारे लिए एक टूल की तरह ये अप्रूव होती है कि हम इस थियरी के थ्रू वो बास्केट ऑफ गुड या फिर उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम चूज कर सकते हैं जो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं. राइट. Assumptions. There are certain assumptions of this theory.
So there are certain assumptions of this theory, that is indifference का theory, or we can say that the consumer behavior theory. इसके कुछ assumptions हैं इस theory के, जिनको हम one by one explain करेंगे यहाँ. The first assumption of this theory is the rationality. Means the first assumption is rationality, means consumer always prefer more good to less. कोई भी कंज्यूमर होगा वो हमेशा ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूं, या वो प्रीफर भी ज्यादा को ही करेगा. अगर उसको कहीं से 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मिल रही होंगी तो वो ही ऑलवेज प्रीफर टू द 2 कमोडिटीज रादर देन 1 कमोडिटी. उसको हम रैशनल बोलते हैं. मीन्स वो किसी भी कमोडिटी को फिर ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा. आई मीन वो रैशनली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो बिहेव करेगा. The second assumption is the limited income. Limited income means जो income है या मीन जो पैसा है कंज्यूमर के पास वो बहुत लिमिटेड होगा. उसके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो वही लिमिटेड पैसे में यानी लिमिटेड इनकम में उसको अपने जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है यानी उसका जो कंजम्पशन है उसको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर लेकर जाना है. Third is the ordinal utility that I have already explained to you, that the utility can be measured only in ranks, orders or preferences. This is also an assumption of this theory. Next assumption of this theory is the transitivity of choice, that if in any condition a consumer is ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस मीन्स इफ एक्स कोई भी कमोडिटी है एक्स, आप एप्पल ले लीजिए और वाई को आप मैंगो मान लीजिए, तो इफ आई प्रीफर एप्पल ओवर मैंगोज एंड मैंगोज ओवर ग्रेप्स, देन इन एनी अदर कंडीशन आई ऑलवेज प्रीफर एक्स ओवर जेड और एप्पल्स ओवर ऑरेंजेस, और आप कोई भी इसमें कमोडिटी ले लेते हैं. यानी अगर मैं x को प्रीफर कर रहा हूँ y के ऊपर और y को मैं प्रीफर करता हूँ z से, तो x इज ऑलवेज और ऑटोमेटिकली x इज सुपीरियर देन द z. ये समझ में आया? उसकी जो चॉइस है वो ट्रांजिटिविटी रहेगी. ऐसा नहीं है कि वो एक कंडीशन में किसी एक कमोडिटी को प्रीफर कर रहा है, फिर जो दूसरी कंडीशन अगर उसके सामने आ गई तो फिर वो दूसरी कमोडिटी को प्रीफर करना शुरू कर देगा. ही ऑलवेज ट्रांजिटिव, उसकी जो चॉइस है वो हमेशा ट्रांजिटिव रहेगी, मतलब वो साफ रहेगी. अगर वो x को प्रीफर करता है y के ऊपर और y को प्रीफर करता है z के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है कि x को ही प्रीफर कर रहा है वो z के भी ऊपर. राइट. नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस. उसकी जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट रहेगी. राइट. इफ ही प्रीफर टी ओवर कॉफी, अगर वो टी को प्रेफर करता है कॉफी के ऊपर, सो ही नेवर टेक्स कॉफी ओवर टी. वो कॉफी को टी के ज्यादा कभी नहीं लाइक कर सकता, या फिर टी और कॉफी को वो इक्वल नहीं रखेगा. राइट. उसके लिए हमेशा टी ही प्रीफर रहेगी, वो टी को ही ज्यादा प्रीफर देगा या टी ही उसको हमेशा पसंद रहेगी. ये है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, कि उसकी जो चॉइस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. राइट. इफ x इज ग्रेटर देन y इन वन पीरियड, मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया, अगर वो t को कॉफी के ऊपर प्रीफर करता है किसी एक पीरियड में, देन x इज नॉट लेस देन और इक्वल टू y. तो इसका मतलब ये है कि x जो है यानी t, वो y के ना तो कभी कम होगी, t से कभी कम होगी, और ना ही कॉफी के कभी इक्वल होगी. राइट. that x is not less than or equal to y in other words. Right. नेक्स्ट assumption जो है इसका वो है diminishing marginal rate of substitution. ये आप लोगों ने सब पढ़ा होगा. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है when a consumer substitute a commodity, a unit of a commodity for the other unit of some other commodity. जब कोई कंज्यूमर किसी एक यूनिट के लिए, किसी एक प्रोडक्ट की एक यूनिट के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करता है, उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, और वी कैन से दैट द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग. ये कम होता रहता है. जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करेगा, उसका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होता रहेगा. यानी अगर उसको
एप्पल्स ज्यादा लेने हैं और उसके पास क्योंकि लिमिटेड इनकम है तो वो अपनी पूरी इनकम को या तो मैंगोज पे खर्च करेगा या तो एप्पल्स पे खर्च करेगा। तो अगर उसको लेट्स सपोज कि उसने 50 रुपीज का एप्पल्स खरीद लिया और 50 रुपीज का ऑरेंज खरीद लिया, अब अगर उसको ऑरेंजेस को बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्पल्स को कुछ कम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर उसको 2 एप्पल एक्स्ट्रा लेने थे, जैसे उसके पास 50 ऑरेंजेस थे, उसने 52 ऑरेंजेस करने हैं, तो उसको हो सकता है कि 4 यूनिट ऑफ मैंगोस छोड़ने पड़े या 6 यूनिट ऑफ मैंगोस को छोड़ना पड़े ताकि वो 2 और ऑरेंजेस एक्स्ट्रा ले सके। तो पहली 2 ऑरेंजेस को बढ़ाने के लिए यानी पहले जो 52 करने के लिए तो वो 6 मैंगोस छोड़ सकता है। फिर अगर उसको और फर्दर कोई कहे कि आपको और ऑरेंजेस लेने हैं तो वो क्या करेगा, वो फिर से अपने 2 ऑरेंजेस बढ़ाने के लिए फिर से उसे कुछ मैंगोस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो अपना ऑरेंजेस को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसका जो यूनिट ऑफ मैंगोस को जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कम होगा। यानी पहले 2 ऑरेंजेस को बढ़ाने के लिए उसने 6 मैंगोस को सेक्रीफाइस किया था, 6 मैंगोस को छोड़ दिया था। फिर अगर उससे किसी ने कहा कि आपको 2 ऑरेंजेस और बढ़ाने हैं या अगर उसको खुद ही 2 ऑरेंजेस और बढ़ाने हुए तो 2 और नेक्स्ट ऑरेंजेस के लिए वो 6 मैंगोस नहीं छोड़ेगा, राइट, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 52 ऑरेंजेस हो गए हैं। अब अगर वो 2 ऑरेंजेस और लेता है तो उसके पास 54 हो जाएंगे। अब वो कहेगा कि मैं 2 ऑरेंजेस जो मैं और एक्स्ट्रा आपसे ले रहा हूँ इसके लिए मैं आपको 6 मैंगोस नहीं दूंगा, मैं आपको इसके लिए सिर्फ 4 मैंगोस दे सकता हूँ, आपको देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए, ठीक है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है आप 4 मैंगोस हमें दे दीजिए और अब बदले में आप 2 ऑरेंजेस ले लीजिए। अब उसके पास 54 ऑरेंजेस हो गए, यानी जो यूनिट है अमाउंट जो है ऑरेंजेस का वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो और ज्यादा प्रीफर हो गया है, वो और ज्यादा पूरा हो गया है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब अगर उसको फर्दर और इंक्रीज करना हुआ ऑरेंजेस को तो वो अपने ऑरेंजेस को इंक्रीज करने के लिए 4 मैंगोज से भी कम देने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, राइट। अब उसको 56 ऑरेंजेस करना है तो 56 ऑरेंजेस करने के लिए अब वो बोलेगा कि मैं आपसे 2 ऑरेंज के बदले में मैं आपको सिर्फ 2 मैंगोज दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अगर उसको ऑरेंजेस नहीं भी मिलेगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे उसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होता रहता है, यानी उसका जो यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस है वो डिक्रीज होता रहता है। पहले उसने 6 यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर उसने जब 2 और यूनिट को बढ़ाया तो उसने फिर सिर्फ 4 मैंगोज को सेक्रीफाइस किया, और फिर जब फर्दर उसने 2 और मैंगोज को इंक्रीज करना चाहा तो उसने सिर्फ 2 ही मैंगोज को सेक्रीफाइस किया। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होता रहता है यानी डिक्रीज होता रहता है, right? Rate at which a consumer substitute one good for the other good so that the level of utility remains the same, right? ताकि उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो बराबर रहे यानी सेम रहे। वो रेट जिसपे एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए सब्स्टिट्यूट करता है या सेक्रीफाइस करता है उसी रेट को हम रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू, आप यहाँ इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई और चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ अ कंज्यूमर कंटिन्यू टू सब्स्टिट्यूट हिज एमआरएस डिक्रीजेस, अगर इस अप्रोच के थ्रू अगर जो कंज्यूमर है वो अपना जो उसका सब्स्टिट्यूशन है उसको अगर कंटिन्यू रखता है तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता रहता है। वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो डिक्रीज होता है, राइट। कि वो जैसे जैसे अपने यूनिट्स को बढ़ाएगा एक गुड की या एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को उसे उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज करना होगा, और वो जिस प्रोपोर्शन में डिक्रीज करता है वो हर एक यूनिट ऑफ इंक्रीज के साथ वो डिक्रीज होता रहेगा, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस अप्रोच में वो डिमिनिश होता है। Indifference curve, thus indifference curve is the locus of points of the different combination of different goods which gives an equal level of satisfaction to the consumer, right? If अगर हम indifference curve को explain करें, so indifference curve is the locus of the different combinations of different goods
क्योंकि जो कंज्यूमर है वो उसके पास कंज्यूमर हैव अ वेरी लिमिटेड इनकम एंड इन दैट लिमिटेड इनकम दे हैव टू चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। उसे गुड्स का कुछ कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। ऐसा नहीं कि वो अपनी सारी इनकम किसी एक पर्टिकुलर गुड पे ही खर्च कर दे, राइट। उसको क्योंकि उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी वांट्स हैं, उसको अपनी सारी वांट्स को पूरा करना है, फुलफिल करना है। सो एवरी कंज्यूमर हैव टू चूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गुड्स। उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गुड्स को चूज करना होता है ताकि उसका जो इनकम है, उसके पास जो पैसा है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सके और उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी हाईएस्ट हो जाए। Therefore, a consumer is indifferent between any of the combination which lies on the same indifference curve. और क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो लोकस है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसीलिए जो कंज्यूमर है वो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इंडिफरेंस रहेगा। अगर वो लेट सपोज कि देयर आर 6 और 7 पॉइंट्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, तो हर एक पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। This happens because consumer has a power to substitute among various goods given their prices and his income level. और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सब्सटीट्यूशन पावर है। अगर उसको कभी ये लगे कि ये दिस पर्टिकुलर कमोडिटी गिव्स मी लेसर सेटिस्फेक्शन, तो वो उसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है दूसरी पर्टिकुलर कमोडिटी से, किसी दूसरी कमोडिटी से जो उसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। For the simplicity, we take an example of two goods. Let's take the example of two goods X and Y, and you now given the income of the consumer, because consumer के पास जो income है वो given है already. Let's suppose कि 100 rupees income है या 200, 500, 1000, 2000 जितना भी है, but the income is given and it is limited, and the prices of X and Y are also given. जो prices हैं कमोडिटीज के, हमारे पास दो कमोडिटी हमने चूज किया है एक्स एंड वाई, दोनों के प्राइसेस भी हमें गिवन है, हमें पता है कि दोनों के प्राइसेस क्या है। द कंज्यूमर कैन चूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई टू बी कंज्यूम्ड। तो अब क्योंकि उसके पास दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस भी हैं और उसके पास उसका इनकम भी है, तो कंज्यूमर क्या करेगा ऐसे में, कंज्यूमर ये देखेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। लेट्स सपोज कि एक्स उसको ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू द वाई, तो अपनी इनकम का वो ग्रेटर पार्ट एक्स पे खर्च करेगा और लेसर पार्ट वो वाई पे खर्च करेगा, राइट। सो दैट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट उस प्रोडक्ट पे या उस गुड पे खर्च कर रहा है जिससे उसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। आप ये समझे, हमने we take an example of two goods X and Y, और जो कंज्यूमर है उसका इनकम भी गिवन है और जो प्राइसेस है X and Y के वो भी गिवन है। So in this situation the consumer has to choose different combinations of X and Y. X and Y के वो different combinations को choose कर सकता है जो उसका जो लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर सके। Thus, all those combination of X and Y which gives an equal utility to the consumer forms an indifference curve. और वही सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को, वही सारे कॉम्बिनेशंस का पॉइंट जो कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व को फॉर्म करते हैं। वही उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम इंडिफरेंस कर्व को बना सकते हैं। Moreover, the consumer can substitute between X and Y and thus can either consume more of X and more of Y. जबकि जो कंज्यूमर है वो X and Y में सब्सटीट्यूट कर सकता है, या तो वो ज्यादा X को कंज्यूम करे या तो वो ज्यादा Y को कंज्यूम करे। But the main point is that the level of satisfaction arising from the different combination of X and Y remains the same. लेकिन again, right, so
क्योंकि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक्स एंड वाई को, सो ही कैन आइदर इंक्रीज कंज्यूम और इधर कंज्यूम मोर ऑफ एक्स और इधर कंज्यूम मोर ऑफ वाई, बट द मेन पॉइंट दैट उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहना चाहिए फ्रॉम बोथ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई. Graphical representation of indifference curve. From the figure, we can understand the indifference curve and its properties. From the figure at point A, the consumer consumed 14 apples and 20 banana. 20 banana combination of goods, whereas at point B, he substitute apple with banana and the combination. Whereas at point B, he substitute apple with banana and the combination at point B is 10 apples and 25 banana. A point पे consumer is consuming 14 apples and 20 bananas. And at point B, he consumes 10 apples and 25 bananas. Similarly, at point C, the consumer is consuming 9 apples, here 9 apples and 41 bananas. Combination of both the goods. Given is income and prices of X and Y. These are X and Y. X is banana and Y is apples. However, although point A, B, C gives the consumer equal level of satisfaction, hence he is indifferent among A, B and C. Because the combinations A, B and C lies on the same indifference curve or the same curve, that's why the consumer is indifferent between all these 3 points, either the A, either the B or either the C. Either consume A or either consume B or either consume C. The level of satisfaction of the consumer remains the same. Consumer किसी भी point पे consume करेगा, उसको जो मिलने वाला level of satisfaction है वो बराबर होगा. या तो वो 10 apples consume करे और 20 banana consume करे, तब भी उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा, यानी उसको जो टेस्ट है वो उतना ही आएगा. और अगर वो 10 एप्पल्स कंज्यूम करता है और 25 बनाना यूज करता है, तब भी उसको उतना ही टेस्ट आएगा. और अगर वो 9 एप्पल्स कंज्यूम करता है और 41 बनानास कंज्यूम करता है, तब भी उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बराबर मिलेगा. सो कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट बिटवीन द गुड्स. वो कंज्यूम जो गुड्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, मतलब वो वाई को भी ज्यादा कंज्यूम कर सकता है और एक्स को भी ज्यादा कंज्यूम कर सकता है. बट जब मिलने वाला उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बराबर रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसने अपनी पूरी की पूरी इनकम उसने सिर्फ बनाना पे ही खर्च कर दी. अगर उसके पास वो इसमें से एप्पल्स कंज्यूम ही ना करे, सिर्फ बनाना ही कंज्यूम करे, तो क्या है उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं माइंड में ये रहेगा कि यार मैंने आज एप्पल नहीं खाया, सिर्फ बनाना खाया, राइट. या अगर वो लेट सपोज कि जैसे खाना खाते हुए वो रोटी ना खाए, सिर्फ सालन को खा ले या सब्जी खा ले, ठीक है, तो उसको ये रहेगा कि आज मैंने रोटी नहीं खाई. या फिर अगर राइस खाली खा ले या रोटी ना खाए, तो उसको ये रहेगा कि मैंने यार रोटी नहीं खाई, सिर्फ राइस खाया. तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं होगा. उसको दोनों गुड्स को कंज्यूम करना है, बट ये है कि वो एक को ज्यादा कर सकता है, दूसरे को कम कर सकता है, लेकिन करेगा दोनों को, ताकि उसको खाने के बाद ये लगे कि हाँ भाई मैंने अभी मतलब पूरा मेरा जो सेटिस्फेक्शन था, मेरी जो यूटिलिटी या मेरी जो वांट्स थी या मेरी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई. Therefore, the curve joining A, B and C is known as indifference curve. इसीलिए हम ये जो कर्व है हमारा जो A, B और C पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए हम इस पॉइंट को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो है इन पॉइंट्स में इंडिफरेंस रहता है. वो किसी भी पॉइंट को चूज कर सकता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रीफर नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी उसकी जो जरूरत पूरी हो रही है, वो तीनों पॉइंट पे बराबर हो रही है. इसीलिए कंज्यूमर तीनों पॉइंट्स में इंडिफरेंस रहता है, where the consumer is indifferent of the different choice which he has, as they all gives him equal level of satisfaction. Here only the combination of apple and banana are different at each point, but the level of satisfaction which the consumer obtained from them is same. इन points पे जो कॉम्बिनेशन है एप्पल्स और बनाना का वो अलग अलग है, राइट. किसी पॉइंट पे बनाना की यूनिट्स ज्यादा मतलब अलग है. लेट सपोज कि ए पॉइंट पे बनाना सिर्फ
20 है और एप्पल्स सिर्फ 14 है। दूसरे पॉइंट पे एप्पल्स जो है 10 है और बनानास जो है वो 25 है। तो जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड बनानास है वो अलग अलग है, लेकिन उनसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बराबर है। Now, if the consumer either consume more of good or both the goods, then he would be able to increase his level of satisfaction. अगर कंज्यूमर को जो कंजम्पशन है अपना वो इंक्रीज करना है तो उसको दोनों कमोडिटीज यानी दोनों गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है दोनों को इंक्रीज करना। There are certain properties of indifference curve, and the first property of indifference curve is the negative slope. That the slope of the indifference curve is negative, that is, it is downward sloping. ये ऊपर से नीचे की तरफ डाउनफॉल होता है, यानी इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर हमें एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की या एक गुड की यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे जो यूनिट गुड्स है हमारा उसकी यूनिट को डिक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से जो स्लोप इंडिफरेंस कर्व का वो नेगेटिव होता है। Second property of indifference curve, that the two indifference curves can never intersect each other. दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एल्स दे विल ब्रेक द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। जो ट्रांजिटिविटी वाला अजम्पशन हम लोगों ने शुरू में जो पढ़ा है, ये अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो जो इनका अजम्पशन था वो ब्रेक हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब था कि अगर कोई कंज्यूमर x को प्रीफर करता है y के ऊपर और y को प्रीफर करता है z के ऊपर, देन ऑटोमेटिकली x इज ऑलवेज प्रीफरेबल टू दी z। तो अगर दो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जिस पॉइंट पे दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वो दो गुड्स को एक साथ प्रीफर कर रहे हैं, राइट? उस पॉइंट पे, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व है 1 और दूसरा इंडिफरेंस कर्व है b, दोनों पे जो यूटिलिटी लेवल है यानी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग अलग है। क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल एक इंडिफरेंस कर्व पे तो सेम रहेगा हर पॉइंट पे, लेकिन दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे वो अलग हो जाएगा, राइट? तो जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग होगा। Convex to the origin, this is the third property of the indifference curve, that they are convex to the origin. And the fourth property of the indifference curve, that the higher indifference curve represents higher level of satisfaction, right? एक हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये इंडिफरेंस मैप अगर आप देख रहे हैं तो देयर आर 4 इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3, IC4, right? IC1 is having the lowest satisfaction level as compared to the IC4, क्योंकि जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ही ज्यादा उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होगा। जो जितना फार अवे होगा फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, वो जितना ज्यादा दूर कोई इंडिफरेंस कर्व इस ओरिजिन से होगा वो इंडिफरेंस कर्व उतना ही ज्यादा हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन अ ग्राफ, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अगर हम एक ही ग्राफ में 3-4 या मोर देन 2 या मोर देन 1 इंडिफरेंस कर्व को शो करेंगे तो वो हमारा होगा इंडिफरेंस मैप, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को शो कर रहे हैं। अगर जो कंज्यूमर है उसका इनकम इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करेगा, दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन यानी दोनों गुड्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर देगा। जब उसके पास लिमिटेड इनकम था, लेट सपोज कि उसके पास 100 रुपीज थे, तो 100 रुपीज में ही उसको सिर्फ खर्च करना था दोनों गुड्स के ऊपर, गुड ए और गुड 1 और गुड 2 के ऊपर। लेकिन अगर उसका जो इनकम है वो 150 रुपीज हो जाता है या 200 रुपीज हो जाता है, तो अब उसको क्या करना है, 200 रुपीज खर्च करना है दोनों गुड्स के ऊपर, गुड 1 के ऊपर भी और गुड 2 के ऊपर भी। तो वो दोनों की जो यूनिट्स हैं उनको इंक्रीज कर देगा, दोनों को एक साथ। जब उसके पास इनकम इंक्रीज नहीं हुआ था तब वो सिर्फ एक ही यूनिट, एक ही गुड्स के यूनिट को इंक्रीज कर सकता था दूसरे गुड के यूनिट को डिक्रीज करके। अगर उसको एक
एक्स को इंक्रीज करना था तो उसको वाई को डिक्रीज करना पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसका इनकम इंक्रीज हो गया है, अब वो दोनों गुड्स के जो यूनिट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकता है, दोनों गुड्स के इनको इंक्रीज कर सकता है, यानी उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है अब वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एक ही इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा और हायर इंडिफरेंस कर्व उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे जैसे वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चलेगा वैसे वैसे उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व थियरी। And if you want to ask anything, you can ask. We have 1 minute with us. हमारे पास 1 मिनट है अभी। Have you all marked your attendance? आपने अपनी attendance mark कर दिया है?